भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु आया है, तेरे लिए यीशु आया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थक गए है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। चरणों सा जीवन तेरे लिए, चरणों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए
तुझको आए शिफा, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यार। यीशु बुलाता तुझको आए शिफा, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यार। नदियों सा जीवन तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। चलो ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଗାକୁ ଯିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହେବ, ସଫଳ ଆମେ ହେବା। ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଗାକୁ ଯିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହେବ, ସଫଳ ଆମେ ହେବା। ଏଇ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆସିବ କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ପଛକୁ କେବେ ନ ହଟିବା, ଆପଣାକୁ ସମନ କରି ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇବା। ଆସିବ କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ପଛକୁ କେବେ ନ ହଟିବା, ଆପଣାକୁ ସମନ କରି ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇବା। ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା। ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା। ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ
ସଫଳ ଆମେ ହେବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଚିର ସାଥୀ, ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଦା ରୁହନ୍ତି। ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମ ଶକ୍ତି, ଦୂର ହେବ ସକଳ ଭୀତି। ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଚିର ସାଥୀ, ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଦା ରୁହନ୍ତି। ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମ ଶକ୍ତି, ଦୂର ହେବ ସକଳ ଭୀତି। ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା। ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା। ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବା। ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହେବ, ସଫଳ ଆମେ ହେବା। ଅନାହାର ଦିଅ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଖୋଜିବା। ଅନାହାର ଦିଅ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଖୋଜିବା। ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ସହି ସହି, ସୁସମାଚାର କହି ଚାଲିବା। ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ସହି ସହି, ସୁସମାଚାର କହି ଚାଲିବା। ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବା। ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହେବ, ସଫଳ ଆମେ ହେବା। ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବା। ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହେବ, ସଫଳ ଆମେ ହେବା। ଏଇ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We greet you all in the name of Jesus Christ. आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। It's a great joy to share God's word this morning. और आज की सुबह ये मेरे लिए बहुत आनंद की विषय है। परमेश्वर के वचन से मैं God बांटते जा has रहा हूं। been good to us. और परमेश्वर हमारे सबके लिए भला है। He has been our help and great help in trouble. और हमारे सारे संकटों में वो हमें मदद करते आ रहा है। And we are very, very thankful to God for His goodness and mercies. और उसके भलाई के लिए हम बहुत ही धन्यवादी हैं। We believe that all of you are safe and sound under the mighty care of God. और परमेश्वर के अधीन में आप सब कुशल हैं।
And this morning, as we are going to meditate God's word, और जैसे कि इस सुबह हम परमेश्वर की वचन को ध्यान करने जा रहे let's prepare our hearts together हैं और आइए हम इकट्ठे अपने अपने हृदय को तैयार करें। and let's look to the Lord in prayer. आइए हम परमेश्वर के ऊपर निहारें और प्रार्थना में जाएं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you and praise you for this morning. और परमेश्वर पिता, आज सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We know that, Lord, every time we look to you, you speak to us. और हमारे परमेश्वर पिता, हमें पता है कि हम आपको देखते हैं और हमेशा आप हमसे बात करते हैं। Every time we cry unto you, Lord, you hear our prayer. और परमेश्वर पिता, हम आपसे हम हमारे विनती को देते हैं और Lord, आप हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। Lord, this morning also we invoke your presence in our midst. और परमेश्वर पिता, इस सुबह भी हम आपके उस उपस्थिति को मांगते हैं। And in Jesus' name, be blessed us as we are going to unfold the truth of your word. और जैसे कि हम आपके उस वचन की सत्यता को लाने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हमें तू आशीष दे। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Bible is always a spiritual food to us. और बाइबल हमारे हमेशा के लिए एक आत्मिक खाना है। Whenever we read and meditate God's word, और जब भी कभी हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं, God's word speak to us in all our situation. और हमारे सारे परिस्थिति में परमेश्वर के वचन बात करती है। This morning I am going to share from God's word और आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बांटने जा रहा from हूँ। the epistle of John, First John. और यूहन्ना के पहली पत्री से। Epistle of First John, chapter 1, verse 5 onwards we'll read. यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 5 आयत के आगे हम पढ़ेंगे। And here John is writing a very important truth. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूहन्ना एक महत्वपूर्ण सत्य विषय को लिखता है। The writer of this epistle is the disciple John. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बुक या ये पत्री का जो लेखक है वो चेला यूहन्ना है। He is a very close disciple of Jesus Christ. और परमेश्वर यीशु मसीह के बहुत नजदीक रहने वाला एक चेला था। He was with Jesus और वो यीशु मसीह में था। and he experienced many truth from Jesus और यीशु मसीह से वो बहुत सत्य विषय का अनुभव कर चुका because था। he was one of the close disciple. क्योंकि वो एक बहुत नजदीक रहने वाला एक चेला And था। here when he is writing this epistle, और जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो इस पत्री को लिख रहा है, here is saying we have looked upon, we have touched and we have handled. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो लोग ऊपर देखे और वो बहुत सारे ऐसे विषय को यहाँ पे देख रहे हैं हम He लोग। is mentioning the word of truth. और यहाँ पे ये वो सच्चाई के विषय को दिखा रहा है। Let me bring the truth to you from this passage. और इस वचन से मैं आपके पास सत्यता को लाना चाहता हूँ। Verse 5 says, और वचन 5वीं आयत ऐसी कहती this है, is the message we have heard from him and proclaim to you that God is light and in him is no darkness at all. और जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। God is light. और परमेश्वर ज्योति है। God is the eternal light. और परमेश्वर उस अनंत ज्योति है। And the gospel of and the disciple John is mentioning here the Lord Jesus Christ is the light of the world. और यहाँ पे यूहन्ना ये बता रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जगत का ज्योति है। Today we are looking to Jesus because he is the light of the world. आज हम यीशु मसीह को इसलिए निहार रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ही संसार का ज्योति है। When we look around, और जब हम हमारे बीचों में देखते हैं, we see there are darkness around the world. और पूरे संसार में अंधकार फैली हुई है। People are in the darkness. और लोग जो हैं अंधकार में हैं। They do not know what to do next. और आगे क्या किया जाएगा उनको पता नहीं है। Their future is darkness. और उनका जो भूतकाल है, भविष्यत काल है, वो अंधकार में है। There is nothing, there is no hope in their life. और कुछ नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई भी ऐसा आशा नहीं है। Groping in the darkness. और वो लोग अंधकार में हैं। What to do? क्या करना चाहिए? Whom to look upon? और परमेश्वर को निहारना है। Who is going to help? और कौन हमें मदद करेगा? And here the
Bible is saying Jesus Christ is the light. और यहाँ पे बाइबल ऐसी बताती है कि परमेश्वर यीशु मसीह ही ज्योति है God is light and in him there is no darkness at all. और परमेश्वर ही ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And he goes on say that और ऐसे ये बता रहा है, if we say we have fellowship with him अगर हम कहते हैं कि हम उसमें हमारा सहभागिता है while we walk in darkness, और जब हम अंधकार में चल रहे we हैं lie and do not participate the truth. और हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन सत्य के साथ हमारा कोई सहभागिता नहीं है। Let me bring my first point. और मैं आपको एक पहला मुद्दा बताने जा रहा हूँ। God is light परमेश्वर ज्योति है and there is no darkness in him at all. और उसमें अंधकार का कोई जगह नहीं है। And if we love him, अगर हम उससे प्यार रखते हैं if we say that we have fellowship with him, और हम अगर कहते हैं कि हमारा सहभागिता उसमें है, it is genuine that we should also walk in darkness और and ये- walk in light. असलियत ये है कि हम भी ज्योति में चलना चाहिए Because he is light, क्योंकि वो ज्योति है we should also walk in light. और हमें भी उस ज्योति में चलना चाहिए। But Bible says here, लेकिन बाइबल बताती if we है say we have fellowship with him अगर हम कहते हैं कि हमारा सहभागिता उसमें है and we walk in darkness, और हम अंधकार में चल रहे we हैं, are lying. हम लोग झूठ बोल रहे We are हैं, lying to ourselves. हम खुद को झूठ बोल रहे हैं There is no truth at all in us. और हमारे अंदर कोई भी सत्यता नहीं है। My friends, let me tell you, in those days, और मेरे मित्रों में आपको कहना चाहता हूँ कि उन दिनों में when John was writing and when John was ministering in those days, in the first century, second century, और पहले सेंचुरी में, दूसरे सेंचुरी में जब यूहन्ना ये वचन को लिख रहा है या मिनिस्ट्री कर रहा there है, were different kind of people. और उस वक्त बहुत सारे भिन्न प्रकार के व्यक्ति लोग And थे one group of people, they are saying like this, और एक दल ऐसा कह रहे थे, we believe in God. हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं God is light. और परमेश्वर ज्योति है It's definitely true. और ये निश्चित सत्य है And God is our savior. It's definitely true. और ये निश्चित है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। Our soul is saved. हमारे जो आत्मा है वो सुरक्षित है, Our spirit is saved. हमारे आत्मा जो है वो सुरक्षित है, But we can do whatever we want in our flesh. लेकिन शारीरिक रूप से हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते And हैं। those people, they were going astray from the presence of God. और उस दिनों में वो व्यक्ति लोग परमेश्वर की उपस्थिति से विमुख हो रहे They थे were saying that we are saved in our spirit and soul. और वो लोग कहते कि आत्मा में वो लोग अपने जो मन है उसको वो लोग सुरक्षित रखे हैं, But our body, we can do whatever we want. और शरीर से हम जो चाहते हैं हम कर सकते हैं। To that kind of people, और उसी प्रकार के लोगों के लिए John is writing here. और जॉन यूहन्ना उन लोगों के लिए लिख रहा If है, you are saying you have fellowship with him, अगर तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोगों का सहभागिता प्रभु में है, if you are saying that you are fellowship with the light, और अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि ज्योति में आपका but सहभागिता why है, are you walking in darkness? तो आप क्यों अंधकार में चल रहे हो Why are you doing the things that is to be done in the darkness? और ऐसा चीज क्यों कर रहे हो जो कि अंधकार में किया जाता है? Because you are the son of light क्योंकि आप ज्योति के पुत्र हो and you must walk in the light. और आप अंधकार में चलना चाहिए, Because our God is light and in him there is no darkness at क्योंकि all. हमारा परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार के लिए जगह And नहीं he है। who believes in him should also walk in light. और जो लोग उस पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन लोगों को भी ज्योति में चलना है। But you are saying you are believing the light. आप कह रहे हो कि आप ज्योति में विश्वास रखते You are हो, saying that you trust in the light. आप कहते हो कि आपको ज्योति पे भरोसा है, But you are doing the work of darkness. लेकिन आप अंधकार में जो क्रिया होती है वही क्रिया को कर रहे हो। Friends, many times we also do that. और मित्रों, हम भी कभी कभार हमारे जिंदगी में भी ये सब करते There are हैं so many things happening in our life. और बहुत सारी चीज हमारे जिंदगी में भी हो रही We है। also trust in God. हम भी परमेश्वर पे भरोसा We रखते know हैं। that He is the light of the world. हम जानते हैं कि परमेश्वर ज्योति है जगत का, We know that there is no darkness at all in Him. और हमें पता है कि परमेश्वर में कोई भी अंधकार के लिए And He जगह walks नहीं है in light. और हम ज्योति में चलते हैं। And He wants His sons and daughters to also should walk in light. और जैसे कि परमेश्वर ज्योति में चलता है, वो चाहता है कि उसके बच्चे लोग वो भी ज्योति में चले। So John is trying to refute those things and saying that no, you should not
walk in darkness, but as a children of light, you must also walk in light. और इसीलिए यूहन्ना ये चीज को बता रहा है कि परमेश्वर अगर ज्योति है और वो अगर ज्योति में चल रहा है तो उसके संतान भी ज्योति में चलना चाहिए। Are we also doing the same thing in our life? क्या हम लोग भी वही चीज को हमारे जिंदगी में दोहरा रहे हैं? Yes, we are saved in our spirit. हाँ, ये सच है कि हम अपने आत्मा में सुरक्षित हैं। Yes, we believe in Jesus Christ. हाँ, हम परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा रखते Yes, हैं। we believe that there is a God. और हाँ, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं कि एक But परमेश्वर are है। you knowingly or only doing the things that is supposed to be done in the darkness? और जो चीज आप जानते हुए ना जानते हुए जो कर रहे हो, जो अंधकार में हुआ करता था, If we are doing such things, then we are also walking in darkness. अगर हम लोग ऐसे चीज को कर रहे हैं तो हम भी अंधकार में चल रहे हैं। Because we are denying the truth and denying the light in our life. क्योंकि हमारे जिंदगी में हम उस सत्य विषय को, उस ज्योति को इनकार कर रहे हैं। Maybe you believe in light. हो सकता है कि आप ज्योति पे भरोसा रखते हो, Maybe you believe in God. और हो सकता है कि आप परमेश्वर पे भरोसा But रखते हो, there are things that is in your life which is belongs to darkness. और ऐसा एक चीज है जो आपकी जिंदगी में है जो अंधकार से आती है। This morning we are going to put the things in the hands of God and say, Lord, forgive us because we don't want to walk in darkness. और वो सारे चीजों को आज आइए हम यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर और हम आगे ये सब कुछ नहीं करेंगे। There are another group of people who believes in different concept. और भी कुछ दल के लोग हैं जो भिन्न धारणा को विश्वास करते हैं। Because in the 1st and 2nd century there are so many religious people wake up. और बहुत सारे ऐसे धार्मिक व्यक्ति लोग जाग उठे थे दूसरे शताब्दी में। And there are also false doctrines also raised up. और बहुत सारे झूठे सिद्धांत भी उस वक्त लिखा गया था। Let me bring you another group of people what they are saying. और मैं आपको दूसरे दल के व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो लोग क्या कह रहे थे। They say in their faith, और वो अपने विश्वास में ये कह रहे थे, Jesus did not die on the cross. और ऐसे कह रहे थे कि जी यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा था। Jesus was looking like dying. और परमेश्वर ऐसा दिख रहा था कि एक मरा हुआ व्यक्ति के जैसा दिख रहा था। He looks like dying on the cross, but in fact he didn't die. और लेकिन जब क्रूस में था तो वो मरा हुआ जैसा दिख रहा था, लेकिन वास्तविक में वो मरा नहीं हुआ था। Their concept is the doctrines they follow is docetism. और जो सिद्धांत को वो लोग मान रहे थे वो डोसेसिज्म है। And in that they say Jesus looks like dying, but he didn't die. और ये जो डोसेसिज्म सिद्धांत ये कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह मरा हुआ जैसा दिख रहा था लेकिन नहीं मरा था। What they want to say? और वो यहाँ पे क्या कहना चाहते And what थे? they want to tell to the people? और लोगों को क्या बताना चाहते They थे? are saying if Jesus did not die on the cross, then he didn't shed his blood on the cross. और वो लोग ये कहना चाहते थे कि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे मरा नहीं था, इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह का खून नहीं बहा था। If Jesus didn't die on the cross, he didn't shed his blood on the cross. अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा था तो वो अपना खून नहीं बहाया था। And if he did not shed his blood on the cross, then there is no forgiveness of sin. और अगर यीशु मसीह खून नहीं बहाया था तो कोई पाप का क्षमा नहीं है। Because Bible says without the shedding of blood there is no remission of sin. और जैसे कि बाइबल बताती है कि बिना खून बहाने से किसी का पाप क्षमा नहीं हो सकता। So how can you say that Jesus didn't die on the cross? और कैसे आप कह सकते हो कि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा था? That means you are saying you are rejecting the death of Jesus. और इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आप धिक्कार रहे हो परमेश्वर का मरण को, आप धिक्कार रहे You हो। are rejecting, you are ignoring the death of Jesus और on the जो cross. सच्चाई है उसको आप धिक्कार रहे हो। But John is trying to refute that truth and telling to the people here. और उस यूहन्ना इस बारे में लोगों को सच्चाई के बारे में कह रहा है। Let me read verse 7. और मैं आपके लिए 7 आयत को पढ़ना But चाहता if हूँ। we walk in the light, अगर हम यदि जैसा वह ज्योति में है as he is in the light, वैसे ही हम भी ज्योति में we चले have fellowship with one another. तो एक दूसरे में सहभागिता रखते And the हैं। blood of Jesus, और उसके पुत्र यीशु का लहू his son, cleanses us from all sins. हमें सब पापों से शुद्ध करता है। What John is trying to tell to his reader? और यूहन्ना क्या
कहना चाह रहा है यहाँ पे। He is trying to convince to his reader that no, Jesus in fact died on the cross, and his blood, the blood of Jesus, his son, cleanses from all sin. और जो योना बताना चाहता था, लोगों को ये बताना चाहता था कि यीशु मसीह ने खून बहाया और पूरे सारे लोगों के लिए उसने पापों का शुद्ध किया। Even today there are people who say Jesus didn't die. और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह नहीं मरा। Even today people ignore the death of Jesus. और जो परमेश्वर का जो मृत्यु था उसको लोग इकरार नहीं कर रहे हैं। Even today people ignore the coming of Jesus and dying of Jesus on the cross. और यीशु मसीह जो आया था और क्रूस में मरा था, आज भी लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। But the John is saying, लेकिन यूहन्ना ये कह रहा the है, blood of Jesus cleanses from all sin. और परमेश्वर का लहू पूरे पापों से शुद्ध किया है। There is only one ingredient that can wash us from all sin, is the blood of Jesus और Christ. सारे पापों से बस एक ही चीज है जो हमें पापों से मिटा सकता है, वो परमेश्वर का लहू है। The world is in full of sin. और जो संसार है पूरे पुण्य है पाप All से, the people have committed sin in their life. और सारे लोग जो हैं पाप कर रहे हैं। And there are people who are dying in sin. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाप में मर रहे They are हैं, floating in the river of sin. और नदी में वो लोग पाप कर रहे हैं, And they do not know what is their consequences. और वो लोग नहीं जानते कि उनका जो फल क्या होगा, They do not know where they are heading towards. और वो नहीं जानते कि वो लोग किस ओर जा रहे But हैं। let me tell you, my friends, this morning, और लेकिन मेरे मित्रों में इस सुबह आपको मैं कहना चाहता the हूँ, end is eternal death. और जो अंत है वो अनंत काल का मृत्यु है, The end is eternal hellfire. और जो अंत है वो अंत अनंत काल का अग्नि है। So before that, we need to confess our sin before God and receive the cleansing of Jesus Christ. और उसके पहले हमको अपना पाप को इकरार करना होगा और परमेश्वर से हमारे पापों का शुद्ध के लिए प्रार्थना Because करना Jesus होगा, is the only one who can save us from sin and darkness. क्योंकि यीशु ही केवल एक ही जरिया है जो हमारे पापों को वो शुद्ध कर सकता है, Because he is the Son of God. क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र He है came from heaven. और वो स्वर्ग से आया था, And he lit the light of light to remove darkness. और उसने उस ज्योति को दिया ताकि वो अंधकार दूर हो सके। That's why John is saying he is the light of the world. और इसीलिए यूहन्ना ये कहता है कि यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है। Let me bring you my third point here. और मैं यहाँ पे आपको तीसरा मुद्दा में बताना There चाहता are हूँ। some other kinds of people. और कुछ ऐसे प्रकार के लोग थे, They say we don't have sin. और ऐसे कहते थे कि हमारे जिंदगी में पाप नहीं है, We are not sinner. और हम पापी नहीं They हैं। wanted to defend themselves and say, "Oh, who say I have sinned?" और वो लोग अपने आप को बचाना चाहते थे और ये कहते थे कि कौन कहा कि हम पापी हैं, No, we are not sinner. और हम पापी नहीं हैं, We didn't commit any sin. और हम कोई भी पाप नहीं किए, We are good people. हम बहुत अच्छे लोग We हैं, speak truth. और हम सच्चे वचन को We बोलते do हैं, not fight with others. और लोगों के साथ हम झगड़ा नहीं We करते, do alms to others. Help others. हम लोगों को हेल्प करते हैं, And we do so many good things. और हम बहुत सारे अच्छे कामों को We करते do हैं, charity. और हम अच्छे काम करते हैं, That's why that is the good things we do. और वही चीज जो अच्छा काम है वो हम करते हैं। And this group of people, they deny that there is sin in their life. और ये लोग इनकार कर रहे हैं, ये जो दल है इनकार कर रहे हैं कि उनके जिंदगी में पाप नहीं And है। here also verse 8 says, और यहाँ पे 8वीं आयत ये कहती है, if we say we have no sin, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, we deceive ourselves तो अपने आप को धोखा देते and the हैं, truth is not in us. और हम में सत्य नहीं। Verse 10, और 10वीं आयत, if we say we have not sinned, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, we make him a liar and his word is not in us. तो उसे झूठ ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। And in these two verses, verse 8 and verse 10, और यहाँ पे जो हमने 2 आयत को पढ़ा, 8 और 10 आयत two को, different things are written और here. 2 भिन्न चीज को हम देख रहे First हैं। it says we have no sin, और पहला जो चीज है हम देख रहे हैं कि हमारे जिंदगी में पाप नहीं है, and verse 10 says we have not sinned. और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमने पाप नहीं किया। This is 10वीं two आयत में। different things. और यहाँ पे 2 भिन्न चीज को देख There रहे is हैं, no sin in our life at all. और हमारे जिंदगी में और पाप नहीं है। And another thing saying that we have not sinned at all. और दूसरा चीज ये है कि जो कह रहे हैं कि हमने पाप नहीं किया। That is the concept they have.
और यही जो धारणा था Even उनका था। today, the people of the world have the same concept of no sin in their life. और आज भी संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये इस धारणा को वो लोग पकड़ के रखे हैं They say we have not seen in our life. और वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कभी पाप नहीं There किया is no sin in our life. और हमारे जिंदगी में कोई भी पाप नहीं We है are sin-free people. और हम पाप मुक्त लोग हैं And that's their concept. और यही है उनका धारणा। But John saying to them, और यहाँ पे यूहन्ना उनको कह रहा if है, you are saying this thing, अगर आप ये चीज को कह रहे the हैं first thing you are deceiving yourself. और पहला जो चीज है आप अपने आप को धोखा दे रहे हो And the truth is not in you. और जो सच्चाई है वो आप में नहीं है। Who is the truth? और वो सच्चाई कौन है? John is portraying here the truth is Jesus Christ. और यहाँ पे यूहन्ना यीशु मसीह का चरित्र को वर्णन कर रहा है And he's saying that he is the truth. और वहाँ यहाँ पे ये कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ही सत्य है And the truth is not in you. और वो सच्चाई आप में नहीं है। And verse 10 says, if you say that you have not sinned, और 10वीं आयत ये कहती है यदि आप कहते हो कि आपने पाप नहीं किया you make him a liar. और आप उसको झूठ ठहराते To हैं whom we are making liar? और हम यहाँ पे किसको झूठ We ठहरा are रहे हैं making him a liar. और हम यीशु को झूठ ठहरा रहे And हैं his word is not in us. और उसका जो वचन है वो हम में नहीं है The word of God is not in us. और परमेश्वर का जो वचन है वो हम में नहीं है The word of truth is not in us. और परमेश्वर का जो सत्य वचन है वो नहीं है हम में Because the word of truth separates us from all kinds of sin. और क्योंकि परमेश्वर का जो सच्चाई है जो सच्चाई वचन है वो हमको सारे पापों से अलग किया So है in those days there are people who are saying we have not sinned. और उस जमाने में जब ये लोग ऐसे कहते थे कि हमारे में पाप नहीं है That's why John is saying, no, you are telling lie, you are deceiving yourself. और इसीलिए यूहन्ना कह रहा है कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो तुम अपने आप को झूठ बोल रहे Because हो all have sinned and come fall short of the glory of God. क्योंकि हम जानते हैं कि सारे लोगों ने पाप किया और परमेश्वर से अनुग्रह का पाया Because Bible says क्योंकि बाइबल कहती है every human being has fallen short from the glory of God. क्योंकि परमेश्वर की महिमा से बहुत लोग गिर चुके Because हैं they are sinner. क्योंकि वो लोग पापी हैं David also cried unto God, और दावीद भी परमेश्वर के ऊपर O रोता था Lord, in my mother wombs I was born in sin. और ऐसा कहता है दाऊद कि मैं पाप से जन्मा हूँ And there are full of Bible references who portrays that man is a sinner. और बाइबल में बहुत सारे ऐसे शास्त्रांश है जो पाप के विषय में कहती है And they point out that man is a sinner, और यहाँ पे उस व्यक्ति को दिखा के कह रहा है कि वो व्यक्ति पापी है separating from God makes us sin. और जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो वो अलगाव हमें पापी कहता है We go astray from the और presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से हम भाग जाते हैं We are not praying, we are not reading Bibles and doing all sorts of things that is supposed to be done in darkness. और जो सारे चीज अंधकार में हुआ करती है वो सारे चीज हम करते हैं हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं प्रार्थना नहीं करते हैं Even today, the people of the world are saying we don't have sin. और आज भी पूरे संसार के लोग ये कह रहे हैं कि हम में पाप नहीं है Why do you go to Jesus? Because we have not seen. और हम क्यों परमेश्वर के पास जाएंगे क्योंकि हमारी जिंदगी में पाप नहीं We है have all sufficient people. और हमारे पास बहुत काफी विषय We है have everything. हमारे पास सब कुछ है We have education. हमारे पास शिक्षा We है have wealth. हमारे पास संपत्ति We है have good health. हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य We है can survive of our own. हम खुद जी सकते हैं Why should you go to God? हम क्यों यीशु मसीह के पास जाएं Why should you go to Jesus? क्यों हम यीशु के पास जाएं Because we are not sinner. क्योंकि हम पापी नहीं हैं Let me tell you, my friends, और मैं मेरे मित्रों में आपको कहना चाहता हूँ it is not because we have sinned that is why we are called sinner. और ये ऐसा नहीं कि हमने पाप किया इसलिए हमको पापी कहा जाता है But because we are sinner, that's why we sin. और हम पापी हैं इसलिए हम पाप करते हैं The seed of sin is found in us. और जो बीज है जो पाप का बीज है वो हम में पाए जाती है And the seed of sin is grown in our life and it bear fruits. और जो पाप का बीज है वो हमारे जिंदगी में बढ़ती है और वो पाप की फल को लाती है That's why you need to come to Jesus and repent for our sin. और इसीलिए हमको परमेश्वर के पास आना है और हमारे पापों का प्रायश्चित करना है That's why we should acknowledge that we are a sinner and we need the Savior. We need a Savior. और इसीलिए हमको जानना है कि हम पापी हैं और हम यीशु मसीह के पास आएंगे हमको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है So this big group
group of people are saying, we have no sin and we have not sinned. और इस दल के व्यक्ति लोग ये कहते थे कि हम पाप नहीं किए और हम पापी नहीं हैं। But John is challenging them. और पर यूहन्ना यहाँ पे एक चुनौती को रखता है। And he is saying them, yes, you say you are walking in light. और हाँ, तुम लोग कहते हो कि तुम लोग ज्योति पे चलते हो। You are saying that you believe in God. और आप कहे कि आप परमेश्वर पे भरोसा But रखते you हो, are walking in darkness. लेकिन आप लोग अंधकार में The चल रहे हो truth is not in you. और जो सच्चाई है वो आप में नहीं है। You are groping in the darkness. और आप लोग अंधकार में चल रहे You हो are saying that you have no sin. और आप लोग कह रहे हो कि आप में पाप नहीं है, And you are deceiving your life. लेकिन आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे And you हो। are saying that you have not sinned and you are making him liar and the word of God is not in you. और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने पाप नहीं किया, आप में पाप नहीं है और आप परमेश्वर को झूठा ठहराए हो और परमेश्वर का वचन आप में नहीं है। And John is challenging now. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूहन्ना एक चुनौती को दे रहा है। Whatever situation in your life, और जो भी परिस्थिति आपकी जिंदगी में है, whatever spiritual situation in your life, और जो भी आत्मिक परिस्थिति आपके जिंदगी में है, you may be saying that you are not a sinner. और आप हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मैं एक पापी नहीं हूँ, You may be saying that you have not seen your life at all. और आप ऐसे भी कह रहे होंगे कि आपने कभी भी पाप नहीं But किया। let me tell you, my friend, लेकिन मैं आपको बताना चाहता verse हूँ, 9 says, और जो 9 आयत ये कहती if है, at all you acknowledge that you are a sinner, यदि हम अपने पापों को मान ले, if you acknowledge that you are a sinner, you need to confess your sin to God. अगर आप जानते हो कि आप पापी हो तो आपको परमेश्वर की जरूरत है। If at all you know that you have sinned somewhere in the corner of your life, then you need to repent to God. और आपकी जिंदगी के किसी भी कोने में अगर आप में पाप है तो अभी आपको प्रायश्चित करना होगा परमेश्वर के सामने। If you remember sometimes that there is some kind of sin that is not yet repented, not yet realized before God, you need to come to Jesus and confess your sin. अगर आपको अभी भी याद आ रहा है कि आपकी जिंदगी में किसी भी कोने में आपने पाप किया है और प्रायश्चित नहीं हुआ है, तो अभी आपको परमेश्वर की You जरूरत may है। be saying that you are not a sinner. आप हो सकता है कह सकते हो कि आप नहीं पापी नहीं But the हो, Bible says all have sinned and fall short of the glory of God. और बाइबल कहती है कि सारे लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा के रहित हुए। That's why verse 9 says, और इसीलिए 9 आयत ऐसी कहती if है, we confess our sin, अगर हम अपने पाप को मान ले, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all तो unrighteousness. वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Why John is writing this verse? और क्यों यूहन्ना इस वचन को लिख रहा है? To those people who say we do not have sin. और वो व्यक्ति लोग जो लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर पाप नहीं है और हमने He's पाप नहीं challenging किया, them. और उनको ये चुनौती दे He's रहा है challenging that if at all you realize somehow that you are a sinner, then you need to come to God. और अगर आप अपने पाप को प्रायश्चित करते हो तो आपको परमेश्वर के पास आना होगा। Forgiveness belongs to God. और जो क्षमा है वो परमेश्वर से आती है, And you need to confess your sin before God. और आपको आपके पाप को इकरार करना होगा। And He is just and righteous to forgive all your sin. और वो विश्वास योग्य धर्मी है आपके पापों को शुद्ध करने के लिए। Because John is presenting Jesus Christ as the one who forgives the sins of the world. और यहाँ पे यूहन्ना परमेश्वर यीशु मसीह को रख रहा है कि क्यों यीशु मसीह ही सबके पापों का क्षमा कर To सकता है। those people who rejected Jesus. और वो लोग हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह को धिक्कार किए थे। To those people who ignore the death of Jesus. और वो लोग जो सच्चाई जो यीशु मसीह का जो मृत्यु को इनकार किए थे। To those people who ignore the truth of Jesus. और उस लोगों के लिए जो लोगों ने सच्चाई को नहीं माना था। Now He is challenging to them. और यहाँ पे अभी यूहन्ना चुनौती को दे रहा है। Who you are maybe. और जो आप जो भी हो सकते हो। Let me tell you, my friends. आपको मैं बताना चाहता हूँ, Along with John, I am also challenging you this morning. और यूहन्ना के साथ मैं भी आपको चुनौती दे रहा हूँ। If only you confess your sin before God. अगर आप आज परमेश्वर के सामने आपके पाप को मानते हो, If only you acknowledge that you are a sinner. अगर आप मानते हो कि आप एक पापी हो, And God is faithful and just.
और हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। He forgives our sins and cleanses from all unrighteousness. और सारे धार्मिक कार्यों से परमेश्वर हमें शुद्ध कर सकता है। Hallelujah. 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 Why we need to come to Jesus? और हमें क्या जरूरत है परमेश्वर के पास आने का? Why John is pleading these people, confess your sin and come to Jesus. और यहाँ पे यूहन्ना क्यों विनती कर रहा है उन लोगों को कि आप अपने पाप को मान लो और यीशु के पास आओ? Why John is challenging those people that confess your sin and come to Jesus? और यहाँ पे यूहन्ना क्यों उनको चुनौती दे रहा है कि आपके पाप को आप मान लो और यीशु मसीह के पास आओ? Because John has acknowledged and John has experienced the truth in his life. क्योंकि यूहन्ना को पता था और उसने उस अनुभव को पाया था अपनी जिंदगी में। He is the one who pointed out to Jesus and said, "Look at the Lamb of God who takes away the sins of the world." और यही ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह को देखा और कहा कि यही वो मेमना है जो हमारे पापों को ले जाता है। He is the one who point out Jesus to the people. और वो यही एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को लोगों को दिखाया था। He is the one who said, "For God so loved the world and he gave his begotten son, and whoever believes in him should not perish but have everlasting और life." यही वो यूहन्ना है जो कहा था कि परमेश्वर का इकलौता वारिस है और वो जो लोग उनसे विश्वास करते हैं वो लोग विनाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन को पाएंगे। Now there is again he is saying these things in Epistle John. और ये यूहन्ना की पत्री में फिर से बार-बार वो ये बात को दोहरा रहा Let me है। read verse 1 and 2 of chapter 2. और 2 अध्याय के 1 और 2 आयत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Now he is saying that if you confess your sin in your life, और यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है कि आप अगर आपके पाप को अपनी जिंदगी मान लेते हो, he is able to cleanse you from all unrighteousness. और परमेश्वर सक्षम है आपके सारे बुरे कामों को शुद्ध करने के In लिए। your spiritual journey, आपके आत्मिक यात्रा में, in your life, आपके जिंदगी में, when you walk in your spiritual life, आप जब आपके आत्मिक जिंदगी में चलते if you हो, fall in your sin, जब आप पाप में गिरते हो, when you know that you are a sinner, और जब आप जानते हो कि आप एक पापी हो, then there is an advocate for us. और उस वक्त हमको पता है कि हमारे सहायक एक ठो है। John is presenting Jesus to these people as an advocate. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह को एक सहायक के जैसे रख रहा है यूहन्ना। If only you know that you are a sinner, you are not helpless. और आपको अगर पता है कि आप एक पापी हो तो आप असहाय नहीं हो। You are not helpless. There is a helper for you. और आप असहाय नहीं हो, आपके लिए एक सहायक है। There is an advocate who is going to plead for you. और एक ऐसा सहायक है जो आपके लिए विनती करता है। Someone is there to stand for you. और कोई है जो आपके साथ खड़ा होता Now है। the people of the world are helpless. और अभी हम देख रहे हैं कि संसार के सारे लोग असहाय They हैं are sinner and they do not know where to go for the forgiveness of sin. और वो लोग पापी हैं और लोग जानते नहीं कि कहाँ जाना है उनके पाप का क्षमा के They लिए। go to different temples, और वो लोग बहुत सारे भिन्न मंदिर पे जाते and they हैं throw their money. और वो लोग अपने पैसे को फेंकते They go हैं। to different rivers and take a dip. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे नदी पे जाते हैं और डूबते हैं। They do not know what to do and how to get salvation. और वो लोग नहीं जानते और कैसे मोक्ष को प्राप्त करना है वो भी नहीं Because जानते। of that, they do so many such of things so that to get out from sin. और बहुत सारे ऐसे काम को करते हैं और ताकि वो लोग पाप से निकल सकें। But John is writing here, और लेकिन यूहन्ना यहाँ पे लिखता है, you may know that you are a sinner. And if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous God. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। We have an advocate, he is the righteous one. और परमेश्वर धर्मी है और वो हमारा सहायक है। And he can plead for you. और वो आपके लिए विनती कर He सकता can do है। something for your righteousness. और वो आपके धार्मिक काम के लिए वो कुछ Because कर when we सकता है। come to God as a sinner,
और जब हम परमेश्वर के सामने एक पापी के जैसे आते He हैं takes away all our sin. और वो हमारे सारे पापों को ले जाता है And He gives us His righteousness to us. और वो सारे अपने धर्मी विषय को हमारे It is जिंदगी में देता a, है it is a righteous exchange. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक धर्मी बदलाहट। एक बदलाहट है He takes away all our sins. और वो हमारे सारे पापों को ले जाता है And He gives all His righteousness to us. और वो सारे धर्मी चीजों को हमारी जिंदगी में देता है Hallelujah. हालेलुया Again, John says in chapter 2, और यहाँ पे फिर से जो यूहन्ना 2 अध्याय में He कहता है is not only an advocate to us, वो केवल हमारे लिए एक सहायक नहीं है but He is the propitiation for all our sins. और वो हमारे लिए प्रायश्चित है He is the propitiation for all our sins. और हमारे पापों का प्रायश्चित है What is the meaning of propitiation? और यहाँ पे जो प्रायश्चित का मतलब क्या है John is presenting here Jesus is the propitiation. और यहाँ पे यूहन्ना ये कह रहा है कि यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है Because Bible says the wages of sin is death. और जैसे कि हम देखते हैं बाइबल कहती है कि पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है We have sinned and we need to receive up the punishment. और हम पाप किए हैं और हम उस दंड को पाएंगे For my own sin, I need to receive the punishment. और मेरे खुद के पाप के लिए मुझे दंड पाना है No one is going to receive punishment on my behalf. और मेरे बदले कोई दूसरा उस दंड को नहीं I पाएगा am a sinner and I need to receive the punishment. मैं एक पापी हूँ और मुझे उस दंड को ग्रहण करना Because the होगा Bible says the wages of sin is death. क्योंकि बाइबल कहती है कि जो पाप का जो वेतन होता है वो मृत्यु है But Jesus Christ is the propitiation. He came down from the heavens and He died on my behalf. He died on my place and He relieved me as a righteous और person. जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे प्रायश्चित पापों का प्रायश्चित है वो स्वर्ग से आया और मेरे जगह जहाँ पे मुझे मरना था जहाँ पे मुझे दंड पाना था वहाँ पे वो खुद मर गया I was supposed to die in my sin. और मुझे मरना था मेरे पापों में I was helpless. और मैं असहाय था But Jesus Christ died on my behalf, on my place, and He saved my life. और मेरे जगह पे मेरे बदले यीशु मसीह ने अपना जान दिया और मुझे बचाया But there is a good news, my friend. और एक सुसमाचार है He मेरे not दोस्तों only died for me, और वो केवल मेरे लिए मरा He नहीं not only died for my sin, और बस मेरे पापों के लिए नहीं मरा but what John is saying here, लेकिन यहाँ पे यूहन्ना क्या कह रहा है verse 2 says, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. और यहाँ पे 2 आयत में ऐसा कहता है और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है He is the propitiation for your sins. और परमेश्वर आपके पापों का भी प्रायश्चित है He is the propitiation for the sins of the entire world. और पूरे संसार का भी पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह है You may not be ignorant about this. और आप हो सकता है इस चीज को आप नहीं देखते हो You are ignorant about this truth. और इस सच्चाई को आप नहीं मानते हो But let me tell you, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ 2000 years before someone died for your sin, और 2000 साल पहले कोई आपके पाप के लिए मरा था and He was the propitiation for your sins. और वो आपके पापों का प्रायश्चित था Now you don't have to worry for your life. और आपके जिंदगी के लिए अभी आपको चिंता नहीं करना Now है only things you need to do is confess your sin, because He is just and righteous to forgive all your sins. और वो धर्मी और विश्वास योग्य है आपको कुछ करना नहीं होगा बस आपको आपके पापों का इकरार करना होगा बाकी परमेश्वर करेगा The people of the world are ignorant about this truth. और ये संसार के लोग इस सच्चाई को नहीं मान रहे They do हैं not know that Jesus Christ already died for them on the cross of Calvary 2000 years ago. और 2000 साल पहले उनको पता नहीं है 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस में अपना जान दिया था And He shed His only blood on the cross of Calvary. और क्रूस कलवरी के क्रूस में अपने खुद के खून वो बहाया था And the sins of your life can be washed to the blood of Jesus. और आपके जो जिंदगी में जो पाप है वो बस यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही धोया जा सकता है You no need to go to any temple. आपको कोई मंदिर जाना नहीं You no होगा need to dip in any river. और आपको कोई भी नदी में डूबना You no नहीं need to है do any alms and any things to please your life. और आपको किसी को मदद करना नहीं है परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए But you need to confess your sin before God. लेकिन आपको एक ही मात्र काम करना होगा आपके जो पाप है उसको मान Whoever लेना you है may be, my friends. आप जो भी कोई हो सकते हो You may मेरे be a दोस्त, Christian. और आप एक मसीह हो You सकते may be हो anyone from any backgrounds. और आप
कोई भी हो सकते हो, कोई भी पृष्ठभूमि से। But that is the truth Bible declares. और यहाँ पे बाइबल एक सत्य विषय को घोषणा करती है। Jesus Christ is the propitiation for all the world. और यीशु मसीह ही केवल पूरे संसार का प्रायश्चित है। Jesus Christ loved, died for the entire world. और यीशु मसीह संसार को प्रेम रखता है और पूरे संसार के लिए उसने अपना जान And दिया। his blood is available even today to cleanse your sin. और आज भी उसका खून उपलब्ध है आपके पापों को धोने के लिए। Can you come to Jesus? क्या आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं? Can you surrender your life to Jesus? क्या आप अपनी जिंदगी को समर्पण कर सकते Can हैं? you say to Jesus, yes Lord, I believe that you are light, but sometimes I walk in darkness. क्या आप ये कह सकते हो कि हाँ परमेश्वर, मैं आपको विश्वास रखता हूँ कि आप ज्योति हो, लेकिन आप कभी कभार आपकी जिंदगी में गलती करते हो। Oh yes, many times you ignorance the blood of Jesus. और बहुत बार ये होता है कि आप यीशु मसीह के जो लहू है उसको आप अनदेखा करते हो। Many times you live a life sometimes that you declare that you are someone who don't need salvation, you don't need the blood of और Jesus. कभी कभार ये होता है कि आप खुद ऐसे घोषणा करते हो कि मुझे परमेश्वर यीशु मसीह का लहू का जरूरत नहीं है। Many times you say that I have not sinned and there is no sin in my life. और बहुत बार ये आप कहते हो कि मैंने पाप नहीं किया और मेरी जिंदगी में कोई पाप नहीं है। But let me tell you, my friends, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ this morning if you come to Jesus, आज का सुबह अगर आप परमेश्वर के पास आते हो, if you confess your sin, अगर आप आपके पाप को अंगीकार करते if you हो, acknowledge that you are a sinner, अगर आप अपने आप को मानते हो कि आप एक पापी हो you are advocate with us. और आप परमेश्वर का सहायक होते हो, God has presented an advocate for us. और परमेश्वर हमारे लिए एक सहायक को रखा है, And Jesus Christ is the propitiation for all the world. और यीशु मसीह ही हमारे पापों का प्रायश्चित है, पूरे संसार के पापों का प्रायश्चित है। He has already paid the price for our sins. और वो जो कीमत है वो पहले से चुका चुका है। The wages of sin, the death that I should have received, he already received in his life. और जो पाप का जो वेतन मृत्यु है जो मुझे लेना था उसको परमेश्वर ने ले चुका है। Whoever you may be, जो भी आप हो सकते हो, what may be your situation, और आपका परिस्थिति जैसा भी हो सकता है, what kind of spiritual life you are running with, और आप किस प्रकार के आत्मिक जीवन जी रहे हो। you may be walking in darkness and not knowing where to go. और आप हो सकता है कि आप अंधकार में चल रहे हो और आपको पता नहीं कि कहाँ जाना है। This morning Jesus can help you. और इस सुबह आपको यीशु मदद कर सकता है, He is an advocate for us. और वो हमारे लिए एक सहायक है, He is the propitiation for us. और वो हमारे लिए प्रायश्चित है, And his blood cleanses from all sins. और उसके जो लहू है वो सारे पापों को शुद्ध कर He is सकता the है, light of the world. और वो संसार का ज्योति है। He calls us for his good fellowship with him. और वो हमें बुलाता है एक उत्तम सहभागिता के लिए, That's why he called, my children, come unto me, और इसीलिए वो कहता है मेरे संतान मेरे पास आओ and I will give you rest. और मैं आपको आराम May the दूंगा। Lord bless every one of us through this message. और इस संदेश के जरिए हमारे जो पिता हैं परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करें। Father God, thank you for this word. और परमेश्वर पिता इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we surrender our life before you. और परमेश्वर आपके सामने अपने जिंदगी को हम झुकाते हैं। Many times, knowingly or unknowingly, Lord, we walk in darkness. और बहुत बार ऐसा होता है परमेश्वर कि हम जानते हुए ना जानते हुए परमेश्वर पिता हम अंधकार में चलते And हैं, we want to prove ourselves that there is no sin in our life. और हम ये प्रमाण करना चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में पाप नहीं है, And we say that there is no sin at all in our life. और हम ये कहते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई भी पाप नहीं But है। Lord, this morning we acknowledge that we are sinner and we need your forgiveness. और परमेश्वर पिता इस सुबह हम ये मानते हैं कि हम पापी हैं और हम आपसे उस माफी को मांगते हैं। Lord, bless everyone here who is hearing this message. और परमेश्वर पिता उन सारे तमाम लोगों को तू आशीष दे जो लोग ये मैसेज को सुन रहे हैं, In Jesus' most precious name we pray. और यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. May the Lord bless every one of you. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।